Hello dear student, this is your Anil sir and you are on the platform of Anil Physics Guru. Dear student, in our previous class we have discussed about the numericals of mirror. Now we are going to discuss the problems of lenses with the new tricks and tips. So let's start our video. Dear student, before solving the first question, we have to remember our previous equations and formula for this chapter. This is the lens formula, that is 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. Magnification is m is equal to ht upon h1 is equal to v upon u, where f is focal length, u is object distance, v is image distance, h1 is object height, h2 is image height. If for the magnification m is equal to 1, it means that size of the object is exactly equal to the size of the image. If m means magnification is less than 1 or in negative, so it will be h2 is greater than h1, means height of the image is higher than the height of the object. Last, if m is lesser than 1, so h2 is lesser than h1. It means that height of the image is less than the height of the object. So remember one thing students, this formula is 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u is for the lens formula. For mirror formula, this will become positive. And yes, similar changes here. For magnification, h2 upon h1 is equal to v upon u, but for the mirror it is minus v upon u. Remember dear students, in the convex lens and concave lens, we have to understand this when any object is placed, so it is always placed in the left hand side. That's why its value is always in negative. As you see here, convex u is equal to minus, means negative, and focal length always positive. For the concave, obviously the object distance will be negative, but focal length it is also negative. So let's start our first numerical. Dear students, first question, you can see at the corner that a 20 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter. The distance of the object from the lens is 15 centimeter. Find the nature, position and size of the image. So dear students, as we have to write down the given data, so a 20 centimeter tall object, it means that this is question 1, it means that h1 is 2 centimeter. Then it is given that is placed perpendicular to the principal axis of convex lens of focal length 10 centimeter. This is the convex lens, so focal length will be positive 10 centimeter. Then the distance of the object from the lens is 15 centimeter, means the u value of u is negative 15 centimeter. This is because object is always placed in the left side of the lens. So the lens is 15 centimeter. Find the nature, position and the size of the image. So it is asking that we have to calculate what value of v and value of h2. So let's start with the solution. First of all, we have to write down the lens formula, that is 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. We have to find out the v. So when we place v over here, 1 upon v will be 1 upon f plus 1 upon u. Simply this is negative, this will come here positively. So 1 upon v is equal to value of f is given plus 10 plus value of u. 1 upon u is negative minus 15. When you solve out this will become 10 and 13 LCM is 13. 10 means 10
the value, then 3 times, and this is 2 times. So 3 minus 2, 1 upon 30. So 1 upon V is equal to 1 upon 30, then V value is 30 centimeter, and yes, it is in the positive. So the first question is solved. Now we will solve the second part. It is asking find the position and size of the image and find its magnification also. So for the magnification, we have magnification is equal to m is equal to h2 upon h1 is equal to v upon u. So value of v is given, value of v is here, value of u is previously given, h1 is given. So we have to find out the h2. So h2 will be v upon u into h1. Now place the value again. V, value of v is 30. We have calculated 30. Value of u, that is negative 15 into h1. Value of h1 is 2 centimeter. So when you solve this, you will find 15 one time, this is 2 times, 2 2 is 4, so it will be minus 4.0 centimeter. So h2 is equal to 4.0 centimeter. So dear students, you can see that the nature of the mirror and the nature of the object or the image is decided by the sign of the positive and negative. So here the value of b means the distance of the image is positive side. It means it will be on the right hand side. So that's why it is real for the convex lens. So we can say that it is real. Next, as this is height is negative side, so it is below the principal axis, that's why it is inverted. And yes, dear students, height of object is 2 centimeter and height of image is just double of that. So we can also say that it is enlarged. Hope this question is clear to you. Moving to the next question. चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं. एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन एंड साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म. क्या कह रहा है? 5 सेंटीमीटर का एक हाइट का एक ऑब्जेक्ट है जो कि 25 सेंटीमीटर अवे है फ्रॉम द कन्वर्जिंग. तो यानी कि यहाँ पर जो u की वैल्यू दी हुई है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो है -25 सेंटीमीटर, देख सकते होंगे. देन आपका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? h1 जो दिया हुआ है वो है 5 सेंटीमीटर. देन आपका कह रहा है कि कन्वर्जिंग लेंस है. कन्वर्जिंग लेंस कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस. और कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है. तो f क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका +10 सेंटीमीटर. मैं प्लस इसलिए लिखता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आपको ध्यान रहे कि ये प्लस और माइनस का ही खेल है इस पूरे के पूरे न्यूमेरिकल में. सो स्टार्ट करते हैं. आपको निकालना क्या है? फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है v की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और फाइंड करना है आपको h2 की वैल्यू. वेरी गुड. अब देखिए मिरर फॉर्मूला, सॉरी लेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं. लेंस फॉर्मूला क्या है आपका? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. तो v की वैल्यू निकालें तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u. जब आप उसको इधर ले जाएंगे तो ये सीधे आपका पॉजिटिव हो जाएगा. तो यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर देते हैं 1/f. f की वैल्यू है 10 प्लस है यहाँ पर 1/u. u की वैल्यू -25. तो ये माइनस माइनस ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा. आप एलसीएम जब लेंगे तो इसको चलिए यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं ताकि आपको आसान रहे. -1/25. प्यारे बच्चों देखो एलसीएम लेना आता होगा सभी को. 10 और 25 का एलसीएम होता है 50. ये 10 कितने टाइम्स हो जाएगा? 5 टाइम्स में. 25 कितने टाइम्स में जाएगा? 2 टाइम्स में. तो ये कहीं ना कहीं आपको मिलेगा 3/50. अब आप गलती करते हैं, कहते हैं सर हमारा तो v की वैल्यू आ गई. नहीं, ये 1/v है. सो अगर ये 1/v है तो यहां से आपको v की वैल्यू मिलेगी 50/3. तो यहां से v की वैल्यू हम सेव कर लेते हैं, या इसको v की वैल्यू आप लिख सकते होंगे 30/3 को 16.66 समथिंग करके बता सकते हैं. तो यहां पर इतना हम सेंटीमीटर लिख लेते हैं. आगे क्वेश्चन में देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में एक और चीज दिया हुआ है वो ध्यान से समझिएगा. कह रहा है
कि फाइंड इट्स पोजीशन एज वेल एज इट्स साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो अब साइज के लिए क्या करना होगा, साइज के लिए हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू v अपॉन u। v की वैल्यू अभी पता है, h2 यहां से निकालना है, तो अगेन h2 इज इक्वल टू v अपॉन u इंटू h1। वैल्यू प्लेस करते हैं, v की वैल्यू क्या है, अभी अभी आई है 50/3, 50/3। u की वैल्यू क्या आई है, u की वैल्यू आपकी गिवन है -25 इंटू h1। h1 आपका क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो बहुत अच्छी चीज है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, 50 ये माइनस में आएगा बाई 3 इंटू 25 इंटू 5। अब आप देखिए ये 1 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 5 जा 10 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 10/3, या इसको कह सकते हैं 3.33 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान देना है ये माइनस में रहेगा, सो नेगेटिव साइन क्या शो करता है। अब बात करते हैं इसके नेचर की। सो देखो डियर स्टूडेंट्स, v की वैल्यू आपकी आई है पॉजिटिव, यानी कि ये बिहाइंड द मिरर सॉरी बिहाइंड द लेंस बना है, तो बिहाइंड द लेंस होने की वजह से क्या होगा, ये इसका नेचर हम बता देते हैं, नेचर होगा रियल एंड यस इन्वर्टेड होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि H2 की वैल्यू नेगेटिव में आई है तो वो इन्वर्टेड होगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हमें पता चल गया कि यहां पर v की वैल्यू क्या है। v की वैल्यू हमारी आ चुकी है 50/3 या कहीं ना कहीं आएंगे 16.66 के आसपास आ चुकी है, और H2 की वैल्यू है -3.33 सेंटीमीटर। चलिए ये तो न्यूमेरिकल पोर्शन था। अब 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें ये भी तो है कि ड्रॉ द इमेज फॉर्मेशन डायग्राम, तो इसको रब करते हैं और चलिए इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है उसकी बात करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए यहां पर हम फॉर्म करेंगे कैसे कन्वर्जिंग लेंस से इमेज फॉर्मेशन होता है, तो ध्यान से समझिएगा। गिवन डेटा हमें ये 3 चीज दिया था, क्वेश्चन में हमें ये और ये निकाल लेना था, तो हमने ये वैल्यू निकाल ली है। तो अब ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स कि u की वैल्यू 25 सेंटीमीटर दिया था और माइनस दिया था, तो यानी कि लेफ्ट साइड पर u रहेगा, लेकिन कहां रहेगा वो डिसाइड नहीं होगा। h1 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का जो है ऑब्जेक्ट वो रहेगा। f की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक ये तो 10 सेंटीमीटर हो गया, फिर ये भी आपका 10 सेंटीमीटर हो गया, f1 2 f1 f2 2 f2, तो ये आपका टोटल यहां तक 20 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है u -25, यानी कि यहां तक तो 20 हो गया, तो कहीं ना कहीं 25 इसके इधर होगा, तो यहां पर ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट से अब रे डायग्राम आपको मैं बता चुका हूं, यहां से एक पैरेलल लाइट रेज जाएगी जो कि कन्वर्जन के बाद कहां से होकर गुजरेगी, फोकल लेंथ से, यानी 2f2 से गुजरेगी। उसके बाद एक हम डालेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो एक इमेज जो जाएगी वो ऑप्टिकल सेंटर जाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर जाने के बाद कहीं वो यहां पर आकर के मिलेगी, इस जगह मिलेगी, और जहां पर आप स्केल से इसको मेजर करेंगे, जहां पर ये कट करेगा आप देखेंगे f2 और 2f2 के बीच में, तो ये यहां पर आपका हो गया इमेज, ये हो गया इमेज, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और डियर स्टूडेंट्स इमेज की बात अगर मैं कर लूं, यहां से यहां तक की पूरी टोटल डिस्टेंस की मैं बात कर लेता हूं, तो ये डिस्टेंस है, u की वैल्यू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब अगर यहां से आप यहां तक की बात करेंगे तो ये v की वैल्यू दिया हुआ है, और v की वैल्यू 16.66 है, तो 16.66 है सेंटीमीटर में ये है। अब ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्ट जो था डियर स्टूडेंट ये 5 सेंटीमीटर का था, कितना सेंटीमीटर का था, 5 सेंटीमीटर का था ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखिए जो ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो -3.33 सेंटीमीटर का है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट होता है तो वो पॉजिटिव होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के जो नीचे गया है तो ये है इमेज, तो ये है 3.33 सेंटीमीटर। आप माइनस में लिखें चाहे ना लिखें, ये तो आपका कैलकुलेशन की वजह से हमने माइनस और पॉजिटिव लिखा था, तो इस तरह से जो आपका ऑब्जेक्ट है वो f2 और 2f2 के बीच में बना हुआ है। तो होप ये इमेज डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स आप इमेज डायग्राम को लेकर के ज्यादा परेशान ना हुए, सिंपली आप कैलकुलेशंस करें, कैलकुलेशन करने के बाद आप देखिए कि u कहाँ है, f कहाँ है, h कहाँ है, v कहाँ है, और उसी के हिसाब से आप उसकी वैल्यू को प्लेस कर दें, आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ जो कि स्क्रीन पर है। ए कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स ए
image at 10 centimeter from the lens. So this is a concave lens, so that's why it having the focal length f is equal to, we will write it here, f is equal to minus 15 centimeter, and then value of v will be minus 10 centimeter because it is a real image. So sorry, it is a virtual image, so that's why v is equal to minus 10 centimeter. Then u is, we have to find out, then find out the magnification. So first of all, image lens formula 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. We have to find out the u. So 1 upon u will be 1 upon v minus 1 upon f. Placing the value of all this formula, 1 upon v is minus 10 centimeter, minus 1 upon f is minus 15. So this minus will be plus, so it will be minus 1 upon 10 plus 1 upon 15. So directly we can solve this by taking 10 and 15 LCM, that is 30, and 10 3 times minus 3 plus 15 2 times plus 2. So it will be minus 1 by 30. So this is your answer? No, dear students, we have to inverse it. 1 upon u, in this case u will be minus 30 centimeter. So it is the value of u. So we have find the value of v. Now we will find the value of magnification. So all you know, the magnification formula is h2 upon h1 is equal to v upon u. Placing the value m, what is given? Value of v and value of u are here. So we will find out by this formula v upon u. Placing the value of v upon u, v is given as minus 10 centimeter, and u is given as minus 30 centimeter. So this minus cancel, this will be 1 upon 3. So magnification will be 1 upon 3. So here you can find out the magnification. Seeing this object, this is negative and u is negative and magnification is less than 1. So what we conclude? We conclude that this is a concave lens because object is left side, object is placed at the left side and image will be also in the left side. So this is a concave lens and it has virtual and erect. So this is the nature. So okay dear students, लेंस के साथ साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आपको दे रहा हूं, वो है ए थिन लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ -25 सेंटीमीटर. व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंथ? इट इज कन्वेक्स और कॉन्केव. तो क्वेश्चन पावर ऑफ द लेंस का है. तो डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि पावर जो होता है वो होता है 100 अपॉन फोकल लेंथ, तब जब ये फोकल लेंथ दिया हो सेंटीमीटर में. लेकिन अगर पावर मीटर में दिया हुआ तो 1 अपॉन एफ डायरेक्ट आप यूज करते हैं. ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं कि जब भी अगर ये फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया है तो पावर निकालने के लिए 100 अपॉन एफ, अगर मीटर में तो 1 अपॉन एफ. तो यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो पावर की वैल्यू आप क्या रखोगे? 100 अपॉन फोकल लेंथ दिया हुआ है -25, और इसको सॉल्व जब आप करोगे तो ये 1 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -4 डायोप्टर. याद रखना डियर स्टूडेंट्स, पावर की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर होती है. क्योंकि ये नेगेटिव साइन दिखा रहा है तो इसका मतलब फोकल लेंथ भी नेगेटिव थी, तो फोकल लेंथ नेगेटिव थी तो इसका मतलब ये कौन सा लेंस होगा? ये होगा कॉनकेव लेंस. सो डियर स्टूडेंट्स, ये पावर का भी फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला आप यूज करके बाकी न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं. सो आज के लिए बस इतना ही. इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे ढेर सारी नई टॉपिक्स के साथ. सो तब तक के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए. लाइक तो कर ही रहे हैं आप लोग, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए. सो मिलते हैं अगले वीडियो में.